Once upon a time in a dense forest, a mighty lion was sleeping peacefully under a shady tree. His loud snores echoed through the jungle. Nearby, a tiny mouse was scurrying through the bushes, looking for food. The mouse saw the lion sleeping and began to play on his body and tail. Suddenly, the lion woke up, angry at being disturbed. He caught the mouse with his huge paw. "How dare you wake me up?" roared the lion. "I will crush you and make you my snack." The little mouse, trembling with fear, pleaded, "Please forgive me, O king of the jungle. I didn't mean to disturb you. If you let me go, I promise I'll repay your kindness someday." The lion laughed heartily. "You, a tiny mouse? How could you ever help me?" But feeling amused and generous, he let the mouse go. "Go, little one. You are free," the lion said. Days passed. One day, while roaming the jungle, the lion got trapped in a hunter's net. Hunters had set up a trap to catch the lion. The hunters hid behind the tree, waiting for the lion to approach the trap. As Hai did, the hunters pulled the ropes and caught him in a net. He struggled and roared, but he couldn't break free. They went back to the village to bring a cart to transport the lion. Hearing the lion's cries, the little mouse came running. "The king is in trouble. I must return the favor." Without wasting a moment, the mouse began to nibble at the ropes with his sharp teeth. Bit by bit, he cut through the net until the lion was free. "You saved my life," said the lion, amazed and grateful. "I never thought a tiny creature like you could help me." The mouse smiled and said, "Even the smallest friend can make a big difference." From that day on, the lion and the mouse became the best of friends. Whenever the mouse passed through the jungle, the lion welcomed him warmly and even allowed him to play on his back and tail. The mouse was overjoyed and played happily, knowing he had found a true friend in the mighty lion. Suddenly, the hunters returned, this time carrying a large cage meant to trap the lion. But the lion and the mouse saw them coming and quickly ran toward them. The hunters, terrified at the sight and sound of the approaching lion, dropped the cage and fled back to the village in fear. The lion and the mouse looked at each other, and laughed. कदीम बाबुल की सरजमीन में एक शख्स रहता था जिसका नाम सुलेमान था। वो अपनी हिकमत और अल्लाह पर गैर मुतज़लज़ल ईमान के लिए मशहूर था। हर रोज़ 3 मरतबा सुलेमान अपनी खिड़की खोलता और घुटनों के बिल बैठकर दुआ करता। वो बाबुल के अजीम शहर में रहता था, जहां वो बादशाह दारिविश की खिदमत करता था, जो एक ताकतवर हुक्मरान था। सुलेमान अपने काम में इतना माहिर और ईमानदार था कि बादशाह इसे पूरे बादशाही का निगरान बनाना चाहता था। लेकिन सबको ये बात पसंद ना आई। कुछ दूसरे रहनुमा सुलेमान से हसद करते। वो जानते थे कि वो अपने अल्लाह का वफादार है और सिर्फ उसी को सजदा करता है। चुनांचे उन्होंने एक चालाक मंसूबा बनाया। वो बादशाह दारिविश के पास गए और इसे कायल किया कि वो एक कानून बनाए कि अगले 30 दिनों तक कोई भी शख्स किसी खुदा इंसान को नहीं, सिर्फ बादशाह को सजदा करे। उन्हें मालूम था कि सुलेमान कभी यह कानून नहीं मानेगा। सुलेमान ने जब यह फरमान सुना तो उसने अपना तर्ज़े अमल नहीं बदला। अपने कमरे की खिड़कियां खोलकर वो हस्म मामूल घुटनों के बिल बैठा और दुआ की। हुक्काम जो छप कर उसकी निगरानी कर रहे थे, इसे दुआ करते पकड़ लिया और बादशाह के सामने ले आए। बादशाह दारिविश बहुत परेशान हुआ। इसे एहसास हुआ कि वो धोखे से अपने ही सबसे काबिले एतमाद मुशीर को सज़ा देने पर मजबूर हो गया है।
मगर मीदियों और फारसियों का कानून वापस नहीं लिया जा सकता था। दिल गिरफ्ता बादशाह ने हुक्म दिया कि सुलेमान को शेरों के गार में फेंक दिया जाए, इस उम्मीद के साथ कि इसका अल्लाह इसे बचा लेगा। रात ने जब जमीन को ढांप लिया, सुलेमान को शेरों के गार में उतारा गया। शेर जो निहायत ताकतवर और खौफनाक थे धाड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही सुलेमान उनके दरमियान खड़ा हुआ, एक पुरसुकून माहौल पैदा हो गया। इसने आहिस्ता आवाज में शेरों से बात की। इसकी आवाज अंधेरे में रोशनी की मानिंद थी। मुजिजाना तौर पर शेरों ने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो इसके अर्द गिर्द लेट गए जैसे उनका जोश और गज़ब खत्म हो चुका हो। तमाम रात बादशाह दारिविश अपने महल में बेचैनी से चहल कदमी करता रहा। जी ही सुबह की रोशनी नमूदार हुई, वो दौड़ता हुआ गार के पास पहुंचा और सुलेमान को पुकारा। गार की गहराइयों से सुलेमान की पुरसुकून और मजबूत आवाज बुलंद हुई, ए बादशाह, मेरे अल्लाह ने अपना फरिश्ता भेजा और शेरों ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बादशाह बहुत खुश हुआ। इसने फौरन हुक्म दिया कि सुलेमान को गार से निकाला जाए। इसके जिस्म पर कोई खराश तक न थी, क्योंकि इसका ईमान इसे बचा गया था। फिर इंसाफ के तकाजे के तहत बादशाह ने हुक्म दिया कि जिन लोगों ने सुलेमान के खिलाफ साजिश की थी, उन्हें शेरों के गार में फेंक दिया जाए। इस बार शेर पीछे न हटे और साजिशी अपने अंजाम को पहुंचे। बादशाह दारिविश ने एक नया फरमान जारी किया कि इसकी सल्तनत के हर हिस्से में लोग सुलेमान के खुदा का एहतराम करें। सुलेमान की बहादुरी और अल्लाह पर भरोसे ने इसे शेरों से बचाया। इसकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने अकीदे पर साबित कदम रहना चाहिए। ये आदमी भूख मिटाने के लिए मछली पकड़ता है, लेकिन उसे मछली पकड़नी नहीं आती। वह दोबारा प्रयास करता है, लेकिन इस बार भी मछलियां भाले में नहीं फंस रही थीं। इसके बावजूद आदमी हर बार कोशिश करता जाता है। आखिरकार वह निराश हो जाता है। तभी एक बड़ी लाल रंग की मछली पानी में घूमने लगती है। उसके इर्द गिर्द घूमने से वहाँ बहुत सारी मछलियां इकट्ठा हो जाती हैं। यह देखकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। उनके साथ पिंकू नाम का एक लड़का भी था, जिसने पेट भरकर मछलियां खाई। इतना खाने के बाद वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद वे लोग बड़ी लाल मछली के ऊपर सवार हो जाते हैं। यह मछली समुद्र की रानी थी। आदमी बार बार मछली से बात करने की कोशिश करता है और लटक कर उसके पास जाकर बताता है, हमें दाईं तरफ जाना है, क्या तुम दाईं तरफ मुड़ सकती हो? लेकिन मछली कुछ समझ नहीं पाती कि आदमी क्या कहना चाह रहा है। तभी वह लड़की मछली के पास जाती है और उसे समझाती है कि उसे किस तरह दाईं तरफ मुड़ना है। लड़की की बात मछली समझ जाती है और दाईं तरफ मुड़ जाती है। कुछ दिनों बाद मछली उन्हें उनके ठिकाने तक पहुंचा देती है। हालांकि रास्ते में मछली एक दुश्मन की नाव देख लेती है। इसे देखकर मछली को बहुत गुस्सा आ जाता है। आदमी उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन दुश्मन मछली को देख लेता है और उस पर गोली चला देता है। इससे मछली और भय, जिसके बाद रानी आगबूला हो जाती है और दुश्मनों की तरफ जाने लगती है। रानी के साथ वाले उसे रोकते हैं, लेकिन वह उनकी बात नहीं सुन रही थी। दुश्मन रानी पर हमला करने का आदेश देता है, जिसके बाद सभी बंदूक और तोप से रानी पर हमला करने लगते हैं। रानी उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। रानी दुश्मनों के पास पहुंचकर उन्हें सबक सिखाती है और उनका पूरा जहाज बीच से तोड़ देती है। मछलियों की रानी बहुत गुस्से में थी। दुश्मन उससे डर रहे थे। तभी रानी पर कोई गोली चलाता है। रानी ने देखा कि वह गोली उसी के साथी ने चलाई थी। रानी को बहुत गुस्सा आता है और वह उसके पास जाती है। आदमी कहता है, हमसे दूर रहो, तुम एक राक्षस हो। तभी आसमान में फ्लेयर चलती है। आदमी दूरबीन से देखता है कि एक और दुश्मनों की नाव आ रही थी। रानी को भी यह बात पता चल गई थी। दुश्मनों ने रानी को देख लिया था। ये लोग उसे राक्षस बोल रहे थे। रानी दुश्मनों की तरफ जा रही थी। लड़की आदमी से रानी को रोकने को कहती है, लेकिन आदमी कहता है, उसे जाने दो, दुश्मन अपना हथियार तैयार कर रहे थे। रानी उनके पास पहुंच चुकी थी। ये लोग एक सही समय का इंतजार कर रहे थे। तभी रानी पानी के नीचे से उनकी तरफ जाने लगती है। दुश्मन रानी की तरफ एक भाला छोड़ता है, जिससे भाला रानी को लग जाता है। रानी पानी में गिर जाती है। समुद्र की रानी मछलियों की रक्षा करती थी। वह किसी को मछलियां पकड़ने नहीं देती थी, लेकिन अब वह मरी हुई झर वाले भाले से मार गिराया था। शिकारी रानी के पास जाता है और कहता है, हिलने की कोशिश भी मत करना, जितना हिलोगी जहर उतना फैलेगा। भलाई इसी में है कि शांत रहो। सभी लोग उस धंसे हुए भाले को निकाल देते हैं और रस्सी से रानी को बांधने लगते हैं। समुद्र की रानी इतनी बड़ी थी कि इंसान उसके सामने चींटी के समान था। शिकारी रानी को अपने साथ लेकर जा रहे थे। अगली सुबह वे अपने महल के पास पहुंच चुके थे, लेकिन रानी की दोस्त उसे बचाने के लिए उसके पास जा रही थी। वह रस्सी को काटने लगती है। रानी को महल के अंदर लाया जाता है, जिसे देखकर यहाँ के सभी लोग बहुत खुशी मनाते हैं, क्योंकि वे रानी को राक्षस समझते थे। महल की महारानी भी बहुत प्रसन्न होती है और कहती है, तुमने एक बहादुरी वाला काम किया है जो तारीफ के काबिल है। शिकारी कहता है, महारानी, आप ही ने मुझे डरपोक और बुजदिल शिकारी कहा था, शायद आप भूल चुकी हैं। शिकारी को खुद पर घमंड था। वह समुंदर की रानी के पास जाकर कहता है, तुम्हारा यह राज्य और दौलत मेरे सामने सब फीका है। महारानी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। इसी बीच लड़की अभी भी रस्सी को काट रही थी। शिकारी रानी को मारने जा रहा था। तभी लड़की के पास शिकारी की साथी आती है और कहती है, शायद हमने समुंदर की रानी को पकड़कर गलती कर दी है। फिर वह अपनी तलवार से रस्सी काट देती है। रानी को होश आ चुका था। सभी लोग वहाँ से भागने लगे, लेकिन रानी के शरीर में अभी भी थोड़ा जहर बाकी था, जिस वजह से वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी।
थी, महल भी तबाह हो रहा था। यह देखकर महल की महारानी घबरा गई। तभी रानी को फिर से होश आया। महारानी बोली, शिकारी इसे जानबूझकर यहाँ लेकर आया है ताकि पूरा महल तबाह कर सके। राजा ने सिपाहियों को हमले का आदेश दिया और महल से तोपें निकाली गईं। लेकिन रानी अभी पूरी तरह होश में नहीं थी। सभी तोपें लेकर तैयार थे। उधर शिकारी वहाँ से छुपकर भागने की कोशिश कर रहा था। समुद्र की रानी ने शिकारी को देख लिया और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गई। राजा और महारानी यह देखकर डर गए और वहाँ से भागने लगे। शिकारी ने प्रतिमा में लगे भाले को निकाल लिया, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया। शिकारी नीचे गिर गया। उसने कई जीवों की जान ली थी और आज उसकी बारी थी। रानी उसे निगलने ही वाली थी कि तभी उसकी दोस्त उसे रोक देती है। रानी हालांकि गुस्से में थी, लेकिन वह उसकी दोस्त की बात सुनकर रुक गई। लड़की ने कहा, इस शिकारी को मारने से लड़ाई का अंत कभी नहीं होगा। शिकारी को एक नया जीवन मिल गया। उसने सबके सामने वादा किया कि वह अब कभी किसी का शिकार नहीं करेगा। उसने भाले को भी तोड़ दिया, लेकिन महारानी को भरोसा नहीं हो रहा था कि समुद्र की रानी ने उसकी बात कैसे मान ली। लड़की ने सभी लोगों से कहा, ये सभी समुद्र के शिकारी थे जिनका काम समुद्र के जीवों को पकड़ना था। सभी अपनी अपनी पोजीशन बनाकर तैयार थे। सामने से एक हरे रंग का बड़ा जीव उनकी तरफ आ रहा था। यह समुद्र का सबसे बड़ा जीव था। शिकारियों का सरदार जहाज को उसके सामने ले जाने का आदेश देता है। सभी अपने काम में लग जाते हैं। एक आदमी बाजा बजाता है, जिससे सभी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सरदार हमला करने का हुक्म देता है और सभी तोप से उस पर हमला करते हैं। इतने हमले के बावजूद भी वह जीव बिल्कुल नहीं डरता। एक शिकारी कहता है, उस पर हमले का कोई असर नहीं हो रहा है। इसके बाद सभी शिकारी तीर कमान लेकर तैयार हो जाते हैं और एक साथ तीर छोड़ते हैं। तीर के वार से उस जीव को घाव महसूस होता है, जिससे वह पानी के नीचे चला जाता है। तभी एक शिकारी भाला लेकर ऊपर जाता है और भाले से उस जीव पर वार करता है, लेकिन भाले का भी कोई असर नहीं होता। इसी बीच उनकी पूरी नाव हिल जाती है। शिकारियों को लगता है कि वह जीव डर कर भाग गया है, लेकिन वह उनके जहाज के नीचे छुपा होता है। अचानक वह जीव पानी से बाहर निकलता है और उनकी पूरी नाव हिला देता है। वह बड़ा जीव पूरी नाव को अपने शरीर से लपेट लेता है और अपनी 3 मुंह वाली पूंछ से शिकारियों पर हमला करता है। शिकारी उसकी पूंछ को अलग करने की कोशिश करते। ये विशाल समुद्र की रानी शिकारियों की नाव को घसीट रही थी। शिकारियों ने रानी को फंदे से बांध रखा था, जो बहुत क्रोधित थी। शिकारियों का सरदार बहुत गुस्से में था। रानी समुद्र के नीचे चली जाती है और समुद्र में गोल चक्कर लगाने लगती है। शिकारियों की नाव का संतुलन बिगड़ रहा था, लेकिन शिकारियों का सरदार गुस्से से एक भाला उठा लेता है और कसम खाता है कि समुद्र की रानी का आज आखिरी दिन होगा। रानी ने घूम घूम कर एक बड़ा सा भंवर बना दिया था, जिससे उनकी नाव भंवर के अंदर जा रही थी। भले ही रानी की जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन शिकारियों को वह हरगिज नहीं छोड़ेगी। बचने का इनके पास एक ही रास्ता था कि रानी में बंधी रस्सी को काट दिया जाए, लेकिन शिकारियों का सरदार ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वह रानी को मारना चाहता था। इनकी पूरी नाव तिरछी हो चुकी थी। एक आदमी गुहार लगाता है कि हमें रस्सी को काट देना चाहिए, नहीं तो सब मारे जाएंगे, लेकिन सरदार उसकी एक नहीं सुनता। एक लड़की ने देखा कि रानी बहुत गुस्से में थी, जिस वजह से लड़की खंजर निकालकर रस्सी को काटने लगती है। शिकारी भाला लेकर रानी के पास जाता है और कहता है, ये तेरी जिंदगी की आखिरी घड़ी है। फिर भाला मारने से पहले उसका संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि लड़की रस्सी को काट रही थी। शिकारी उस लड़की को देख लेता है और मौत की सजा देने को कहता है, लेकिन लड़की उसकी एक नहीं सुनती। तभी वह दूसरे आदमी ये कहानी एक बच्चे की है जिसने रमजान के पहले रोजे में सब्र और शुक्र की एक मिसाल कायम की। कहानी से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करिएगा। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। अली एक छोटा सा बच्चा था जो रमजान के महीने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो हमेशा अपने वालिदैन को रोजा रखते हुए देखता और दिल में सोचता कि कब वो भी रोजा रखेगा। अली का दिल बहुत पुरजोश था, लेकिन साथ ही कुछ खौफ भी था। वो जानता था कि रोजा रखना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इसका अज़्म कर चुका था। साल 2025 के रमजान का चांद नजर आते ही अली बहुत खुश हुआ। रात के खाने पर उसने अपने वालिदैन से कहा कि मैं भी रमजान के रोजे रखूंगी। इस रात खुशी के मारे इसे नींद ही नहीं आ रही थी। न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह अली की वालिदा ने इसे रोजा रखने के लिए जब जगाया तो अली फौरन उठ गया। सब ने मिलकर सेहरी की। फजर की नमाज मस्जिद में अदा करके इमाम साहिब ने सब बच्चों को नमाज के बाद पास बिठाकर रमजान के रोजे की फजीलत बयान की। घर आकर अली दोबारा सो गया। आज इतवार था और सब बच्चों को स्कूल से छुट्टी थी। अली दिन 11 बजे उठा। इसके दोस्त बाहर खेल रहे थे। अली भी उनके साथ खेलने के लिए जाने लगा तो इसकी वालिदा ने कहा, अली बेटा, आज तुम्हारा पहला रोजा है। वालिदा ने खेलने से मना किया, लेकिन अली फिर भी खेलने निकल गया। धूप ज्यादा होने की वजह से अली को बहुत जल्द प्यास लगने लगी। सहरी में इसने दूध, रोटी और अंडे के साथ ज्यादा पानी पिया था ताकि पूरे दिन प्यास ना लगे, लेकिन खेलने की वजह से अब इसे बहुत प्यास लगने लगी। वो घर आलिफ और पानी का गिलास उठा के पानी पीने ही वाला था कि इसे याद आया कि आज तो इसका रोजा है। इसने गिलास रख दिया और बैठ के टीवी देखने लगा, लेकिन अब प्यास की शिद्दत की वजह से इसका बुरा हाल होने लगा। अली दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर वो थोड़ी सा पानी पी ले तो क्या होगा, लेकिन फिर इसने खुद से कहा, नहीं, मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा। दिन गुजरता गया और अली की हालत मजीद बिगड़ती गई।
अपने चचाजाद भाइयों को खाना खाते हुए देखता और दिल में बहुत ख्वाहिश पैदा होती कि वो भी कुछ खा ले। इसके मैदे में शदीद भूख का एहसास हो रहा था। वो किचन में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया ताकि कोई देख ना सके। अली ने फ्रिज का दरवाजा खोला और अंदर की चीजें देखने लगा। खाने की खुशबू उसके नथने में पहुंच गई, मगर फौरन उसने खुद को रोका और कहा, मैंने रोजा रखा हुआ है। इसके बाद अली ने खुद को समझाया कि रोजा रखना सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह के करीब जाने का तरीका। इसके ज़हन में आया कि अगर वो आज रोजा रख लेता है तो ये इसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। शाम तक अली की हालत बहुत खराब हो गई। इसके जिस्म में कमजोरी महसूस होने लगी और वो बहुत थका हुआ था। लेकिन जब इफ्तार का वक्त आया तो सब रिश्तेदार अली की पहली इफ्तारी के लिए आ गए। अली ने खजूर से अपना रोजा खोला और पानी पिया। इसने दिल में कहा, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पूरा रोजा रखा। अली के वालिदैन ने इसे गिले लगा लिया और कहा, बेटा अल्लाह तुम्हारी इबादत कबूल करे। अली की आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि इसने अपनी मेहनत का फल पाया। वो दिन अली के लिए यादगार बन गया। इसने सीखा कि रोजा न सिर्फ भूख और प्यास का मुकाबला है बल्कि ये एक इम्तिहान है जो इंसान को सब्र और खुद पर काबू पाना सिखाता है। अली ने दिल में अहद किया कि वो हर रमजान में रोजा रखेगा और अल्लाह की रजा के लिए हमेशा सब्र करेगा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।